بسم الله الرحمن الرحيم. وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت إذن ومعه رد حين استئذانه أو بعد بلوغ الخبر إليها بشرط تسمية الزوج للمهر فيهما هو الصحيح. الضمير في صمتها راجع إلى البكر البالغة، فإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت كان رضاء، وإذا بلغ إليها خبر نكاحها فسكتت فهو رضاء، لكن تشترط تسمية الزوج حتى لو لم يذكر الزوج، فسكوتها لا يكون رضاء، ولا يشترط ذكر المهر. وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت إذن، اور باکرہ بالغہ کا خاموش رہنا اور اس کا ہنسنا اور اس کا بغیر آواز کے رونا اجازت ہے۔ وَمَعَهُ رَدٌ، اور آواز کے ساتھ رونا رد ہوگا۔ حین استئذانہ، نکاح کی اجازت لینے کے وقت یا اس تک نکاح کی خبر پہنچنے کے بعد، او بعد بلوغ الخبر الیہا، یا اس تک نکاح کی خبر پہنچنے کے بعد، بشرط تسمیت الزوج، شوہر کے نام بتانے کی شرط کے ساتھ، نہ کہ مہر کے ذکر کی شرط کے ساتھ، فیہما، دونوں صورتوں میں، یہی صحیح ہے۔ الضمیر فی صمتها راجع الی البکر البالغۃ، ہا ضمیر راجع ہے باکرہ بالغہ کی طرف۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، تو جب ولی اس سے اجازت مانگے، فَسَكَتَتْ، وہ خاموش رہے یا ہنس دے، کان رضاءً، تو یہ رضامندی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ إِلَيْهَا خَبَرُ نِكَاحِهَا، اور جب اس کو اس کے نکاح کی خبر پہنچے اور وہ خاموش رہے تو یہ بھی رضامندی ہے، لیکن شرط ہے شوہر کا نام ذکر کرنے کی۔ لیکن تشترط تسمیت الزوج، لیکن شرط ہے شوہر کا نام ذکر کرنے کی، حتیٰ کہ اگر شوہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا سکوت رضامندی نہیں ہوگا، اور شرط نہیں ہے مہر کے ذکر کرنے کی۔ وَصَمْتُهَا وَضِحْكُهَا وَبُكَاؤُهَا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان علامات کا تذکرہ کیا ہے جو عورت کی اجازت و رضامندی یا عدم اجازت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ بالغہ سے متعلق ہے، کیونکہ صغیرہ کی جو اجازت ہوتی ہے یا عدم اجازت ہوتی ہے وہ بالکل یکساں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اجازت اور عدم اجازت کا جو اختیار ہوتا ہے وہ ولی کے پاس ہوتا ہے، خود لڑکی کے پاس میں وہ اختیار ہوتا ہی نہیں اگر لڑکی بالغہ نہیں ہے، صغیرہ ہے تو یہ جو مسئلہ ہے وہ بالغہ کا مسئلہ ہے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اگر ولی نے یا وکیل نے عورت سے نکاح کی اجازت طلب کی، یا نکاح ہو جانے کے بعد کسی نے اسے نکاح کی خبر دی کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اور اس لڑکی نے سن کر کے خاموشی اختیار کر لی، صراحتاً رد نہیں فرمایا ہے، رد نہیں کیا ہے، یا وہ لڑکی ہنس پڑی ہے یا بغیر آواز کے رونے لگی، تو لڑکی کا ہنسنا، مسکرانا، خاموش رہنا اور بغیر آواز کے رونا، یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ رضامندی کی علامتیں ہیں، اور ان ساری چیزوں کو عورت کی رضامندی سمجھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، لا ينکح البکر حتی تستأذن، باکرہ کا نکاح نہ کیا جائے حتیٰ کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول اس کی اجازت کی شکل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تسکت، وہ خاموش رہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے معلوم کہ اللہ کے رسول ہم اجازت لینے جائیں گے لڑکی سے تو وہ شرم کی وجہ سے اجازت کیسے دے گی، تو آقا علیہ السلام نے پھر یہ صراحت فرمائی کہ صراحتاً بولنا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ صراحتاً بولنے میں تو شرم و حیا مانع ہوتی ہے باکرہ لڑکی کے لیے، تو خاموشی جو ہے وہی اس کی اجازت مانی جائے گی، اور اگر عورت زور سے اور آواز کے ساتھ رونے لگے تو یہ انکار کی دلیل ہوگا۔
आगे क्या शर्त लगाई है, बिशर्ती तस्मियति ज़ौज। यहाँ से ये बताया है कि औरत की खामोशी या ज़िहक व बुका ये रजामंदी कब समझा जाएगा। तो रजामंदी उस वक्त समझा जाएगा जबकि शोहर का नाम वगैरह पूरा यानी उसका तारुफ करा दिया जाए कि फ़ला आदमी का लड़का है या फ़ला बस्ती का रहने वाला है और फ़ला है और उससे तुम्हारा निकाह हो रहा है। अगर शोहर के बारे में उसको कुछ बताया ही नहीं गया है, बिल्कुल बस मुतलकन कह दिया तुम्हारा निकाह हो गया, तो खामोशी जो है वो रजामंदी नहीं समझी जाएगी। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी है कि शोहर के ज़िक्र से निकाह की रग़बत और आदम रग़बत भी मालूम हो जाती है। हाँ, आजकल हमारे जो ज़माने में वो चूँकि पहले से रिश्ते वगैरह होते हैं और पहले ही से मुतय्यन होता है कि फ़ला का लड़का है, और तो ऐसे मौके पर इजाज़त लेते वक्त जो है अब हमारे यहाँ लड़के का ज़िक्र करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, चूँकि पहले से वो मुतय्यन होता है कि फ़ला लड़के से निकाह हो रहा है। तो इसलिए अगर ना भी ज़िक्र करें आजकल तो चलेगा वो, चूँकि वो पहले ही से मुतय्यन है कि फ़ला से निकाह है। अच्छा, इसमें जो है लड़के के ज़िक्र करने की तो शर्त है, मेहर के तज़किरे की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वजह उसकी ये है कि बवक़्ते निकाह अगर मेहर का ज़िक्र ना किया जाए तब भी निकाह दुरुस्त हो जाता है, तो फिर औरत से उसका तज़किरा ना किया जाए तो इसमें भी कोई हरज नहीं होगा। लेकिन ये जो मसला है, ये मसला भी उस सूरत में है जबकि निकाह कराने वाला वालिद हो यानी बाप या दादा हो यानी वली अक़रब हो। अगर किसी और वली ने निकाह कराया है तो मेहर का तज़किरा भी शर्त होगा। यहाँ पर यह कैद इन्होंने ज़िक्र नहीं की है, तो लेकिन ये कैद है कि अगर वली अक़रब निकाह करा रहा है यानी बाप और दादा, तो मेहर के तज़किरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाप और दादा के अलावा कोई और निकाह वली करा रहा है तो फिर मेहर का तज़किरा भी शर्त हो जाएगा इसमें। अज़मीरु फ़ी सम्तिहा राजिउन इलल बिक्रिल बालिग़। शारे ने बताया है कि समतुहा में जो ज़मीर का मरजा है वो बालिग़ा बाकिरा है, जिसका ज़िक्र माक़बल में भी मसाइल में आ चुका है। मतलब ये है कि अगर वली जो है अगर बाकिरा बालिग़ा से निकाह की इजाज़त तलब करे और वो खामोश हो या हंस दे या रो दे बग़ैर आवाज़ के तो निकाह सही हो जाएगा, और अगर गैर ने निकाह की ख़बर दी है और वो खामोश हो गई तो ये खामोशी भी जो है रज़ामंदी की दलील माना जाएगा। आगे फिर लाकिन तुश्तरत तस्मीयत ज़ौज वगैरह की वजाहत शायर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि शोहर के तज़किरे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शोहर के तज़किरे की तो ज़रूरत है लेकिन मेहर के तज़किरे की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। वलव इस्तअज़नहा गैरु वलिय्यिन अक़रब फ़रिज़ाउहा बिलक़ौलि कस्सय्यिब। और अगर लड़की से इजाज़त ली वली अक़रब के अलावा ने तो उसकी रज़ामंदी कौल के साथ होगी सय्यिबा की तरह। ऐ लव इस्तअज़नहा अल अजनबिय्यु औ वलिय्युन बईदुन, यानी अगर जब इजाज़त तलब करे बाकिरा से अजनबी या वली बईद तो रज़ामंदी सिर्फ़ कौल से होगी। ला यकून इल्ला बिलक़ौल, तो रज़ामंदी सिर्फ़ कौल से होगी। कमा फ़ी सय्यिब, जैसा कि सय्यिबा में होता है, यानी सय्यिबा में जैसे कौल के ज़रिए रज़ामंदी होती है। ये मसला बता रहे हैं कि अगर गैर वली ने इजाज़त तलब की या वली अक़रब के होते हुए वली अबअद इजाज़त तलब करता है तो औरत की खामोशी रज़ामंदी नहीं होगी, बल्कि इजाज़त देने के लिए ज़बान से कलाम करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाकिरा बालिग़ा अजनबी या वली अबअद के सामने कलाम करने से नहीं शर्माती है। लिहाजा उनकी बात के जवाब में खामोशी ये उनकी तरफ इल्तिफ़ात ना करने की दलील है। अगर इजाज़त लेने वाला वली का कासिद है तो वली ही के दर्जे में होता है। हमारे यहाँ आम तौर पर जो इजाज़त तलब करते हैं वो वली तो नहीं होता लेकिन वली का कासिद होता है, इसलिए खामोशी जो है वो इजाज़त मानी जाती है। वज़्ज़ाइलु बकारतुहा बिवसबतिन औ हैदिन औ जिराहतिन औ तानीसिन औ ज़िनान बिक्रुन हुक्मन, ऐ लहा हुक्मुल बिक्री फ़ी अन्न सुकूतहा रज़ाउन। और जिस औरत का पर्दे बकारा ज़ाइल हो जाए कूदने से, वसबह कूदने से, औ हैज़िन या हैज़ की वजह से, औ जिराह या ज़ख्म से, या छींकने से, या ज़िना से, वो हुक्मन बाकिरा है।
बिक्रुन हुक्मन हुक्मन बाकिरा है। ऐ लहा हुक्मुल बिक्री, यानी उसके लिए बाकिरा का हुक्म होगा इस बात में अन्ना सुकूतहा रज़ाउन के उसकी जो खामोशी होगी वो रजामंदी मानी जाएगी। ये मसला जो है पीछे भी बयान किया जा चुका है कि वो औरत जिसका पर्दा बकारत कूदने से या हैज से या ज़ख्म लगने से या छींकने से या ज़िना से ज़ाहिर हो जाए तो वो हुक्मन बाकिरा ही के दर्जे में होती है, यानी उसकी खामोशी जो है ये रजामंदी की दलील होगी। क्यों? इसकी वजह यह है कि मर्दों से मुमारसत के ना पाए जाने की वजह से शर्म व हया उसके अंदर अभी भी क्या है पाई जाएगी और ज़बान से इजाज़त वो नहीं दे सकती है। ज़ानिया का मसला भी यहाँ पर जिक्र किया कि ज़ानिया जो है वो भी बाकिरा के हुक्म में होगी, लेकिन इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। साहिबैन और शवाफे इन हजरात के नज़दीक वो सय्यबा का हुक्म रखती है, अहनाफ के नज़दीक अलबत्ता वो बाकिरा ही के हुक्म में होगी। और उसकी वजह क्या है? अहनाफी फरमाते हैं कि अगर इसको हम सय्यबा के हुक्म में रखें और कौलन इजाज़त को उसके लिए शर्त करार दिया जाए तो लोगों में उसका ऐब ज़ाहिर होगा, और लोगों में ऐब ज़ाहिर होने की वजह से फिर वो उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। तो इस वजह से अहनाफ ये फरमाते हैं कि ज़िनाकार जो औरत है जिसका ज़िना जो है आम ना हो तो वो भी बाकिरा ही के हुक्म में हो जाए। वक़ौलुहा रदत्तु औला मिन क़ौलिही सकत्ती, रदत्ती औला मिन क़ौलिही सदत्ती, रदत्तु वक़ौलुहा रदत्तु औला मिन क़ौलिही सकत्ती। ऐ इज़ा क़ाल ज़ौजु लिलबिक्रिल बालिग़ति बलग़की ख़बरुन निकाहि फ़सकत्ती वक़ालत ला बल रदत्तु फ़लक़ौलु क़ौलुहा वतुक़बल बय्यनतुहु अला सुकूतिहा वला तुहल्लफ़ु फ़ीहा इल्लम यक़ुमिल बय्यिना वहाज़ा इंद अबी हनीफ़ता बिनाअन अला अन्नहु ला युहलफ़ फ़िन निकाहि। और लड़की का ये कहना कि मैंने रद्द कर दिया था, और लड़की का ये कहना कि मैंने रद्द कर दिया था, रदत्तु मैंने रद्द कर दिया था, ये ज़्यादा मोतबर है मर्द के ये कहने से कि तू खामोश रही थी। यानी जब शोहर बाकिरा बालिगा से कहे कि तुझे निकाह की खबर पहुंची तो तू खामोश रही, वकालत और औरत कहे ला बल रदत्तु नहीं बल्कि मैंने रद्द कर दिया था, तो औरत का कौल मर्द मोतबर है और मर्द का बय्यिना कबूल कर लिया जाएगा। व तुक़बल बय्यिनतुहु, मर्द का बय्यिना कबूल कर लिया जाएगा औरत के सुकूत पर, और औरत से कसम नहीं दिलाई जाएगी अगर मर्द बय्यिना कायम ना करे। ये इमाम साहब के नज़दीक है इस बिना पर कि निकाह में कसम नहीं ली जाती है। सूरत मसला जो है यहाँ पर उसको समझने से पहले थोड़ा सा ये बात समझें कि मुद्दाई और मुद्दा अलैह क्या होते हैं और उनका जो हुक्म है वो क्या है। अगर ये बात आपके जहन में रहेगी तो फिर मसले को समझना जो है यहाँ पर आसान रहेगा। मुद्दाई कहते हैं जिसका कौल असल के ख़िलाफ़ हो, जिसका कौल असल के ख़िलाफ़ हो उसको कहते हैं मुद्दाई, और मुद्दा अलैह उसको कहते हैं जिसका कौल असल के मुवाफ़िक हो। दोनों का हुक्म क्या है? दोनों का हुक्म यह है कि मुद्दाई पर बय्यिना वाजिब होता है, दलील पेश करना वाजिब होता है, प्रूफ देना वाजिब होता है। और अगर मुद्दाई के पास बय्यिना ना हो तो मुद्दा अलैह का कौल माल यमीन मोतबर होता है, यानी उससे कसम दिलाई जाएगी और कसम दिलाने के बाद में फिर मुद्दा अलैह का कौल मोतबर हो जाएगा। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 6 मसाइल ऐसे हैं जिनमें मुद्दा अलैह पर यमीन वाजिब नहीं होती, कसम वाजिब नहीं होती है। उनमें से एक निकाह है, रजअत है, फिल इला है, इस्तिला है, रिक है और वला है। इनके मसाइल अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहरहाल पहले जो सबब है, पहला जो मसला है निकाह, उसमें मुद्दा अलैह से कसम नहीं दिलाई जाती है। ये इजमालन आपने समझ लिया। अब मसला समझें। सूरत मसला ये है कि जब निकाह को लेकर मर्द और औरत के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, खाविन जो है अपनी बाकिरा बीवी से कहे कि जब तुझे निकाह की खबर मिली तो तू खामोश थी और मेरे तेरे दरमियान में निकाह मुकम्मल हो गया था। औरत ये कहती है कि नहीं, मैंने निकाह को रद्द कर दिया था। अब चाहे औरत कौलन रद्द करने को कहे या फ़ेलन रद्द करने को कहे, गवाह दोनों में से किसी के पास भी नहीं है तो औरत का कौल मोतबर होगा।
کیونکہ یہاں مرد دعویٰ کر رہا ہے کہ عقد نکاح لازم ہو گیا اور عورت اس کا انکار کر رہی ہے، اور اصل جو ہے عدم نکاح ہے، چونکہ دونوں اس سے پہلے تو اجنبی تھے، تو اصل دونوں کا عدم نکاح ہے، لہذا مرد کا قول اصل کے خلاف ہوا اور عورت کا اصل کے موافق ہوا، اس لیے مرد مدعی ہوا اور عورت ہوئی مدعا علیہ، اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے، اس لیے عورت کا قول معتبر ہو جائے گا، اور عورت پر یہاں پر قسم بھی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی قسم؟ اس لیے کہ نکاح ان 6 مسائل میں سے ہیں جن میں امام صاحب کے نزدیک یمین ہوتی ہی نہیں ہے۔ آگے کہا گیا وَتُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ عَلَى سُكُوتِهَا، اگر شوہر کے پاس عورت کے خاموش ہونے پر بینہ موجود ہو، یعنی نکاح کے مکمل کرنے پر، نکاح کے مکمل ہو جانے پر بینہ موجود ہو تو پھر بینہ قبول کر لیا جائے گا۔ کوئی پروف ہے، مثال کے طور پر نکاح نامے پر دستخط ہے یا گواہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کی بات معتبر مان کر تکمیل نکاح کا حکم لگا دیا جائے گا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت سے قسم نہیں لی جاتی ہے، یہ جو مسئلہ ہم نے ذکر کیا کہ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم نہیں لی جائے گی، یہ صرف امام صاحب کا ہی مسلک ہے۔ صاحبین اور دیگر ائمہ کے نزدیک مدعا علیہ پر ہر صورت میں قسم واجب ہوتی ہے، خواہ نکاح کا معاملہ ہو یا نکاح کے علاوہ ہو، اور فتویٰ جو ہے احناف کے نزدیک وہ صاحبین ہی کے قول پر ہے، امام صاحب کے قول پر فتویٰ بھی نہیں ہے۔